Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and fit at home. Okay, so today we are going to start our next chapter of UT2, chapter number 6 of social science, and name of the chapter is more about culture and heritage. Okay, so in this chapter beta, we are going to read about our culture and heritage. Okay, so first of all I want to tell you that what is culture is the way of life of a group of a people कि जो एक ग्रुप होता है पीपल का पर्टिकुलर ग्रुप एंड व्हाट इज़ देयर वे ऑफ लाइफ ओके एंड व्हाट इज़ देयर लैंग्वेज व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसिंग सेंस दे हैव है ना व्हाट काइंड्स ऑफ cuisines they have you can say what kinds of food habits they have so this all comes under the our culture. Okay, and heritage, what do you mean by heritage? Something that we get from our ancestors. Okay, something that we get from our ancestors, that comes under the heritage. Like you can say monuments, old buildings, music, dance, है ना, ये सारा ये सब कुछ किसके अंडर आता है? हेरिटेज के अंदर. बिकॉज वी ऑल गेट दिस फ्रॉम आर ओल्ड यू कैन से ओल्ड जनरेशन और फ्रॉम आर इंसेस्टर्स. ठीक है, जो भी कुछ हमें एनीथिंग दैट वी गेट फ्रॉम आर इंसेस्टर्स, ठीक है, दैट कम्स अंडर द हेरिटेज. कि हमें हमारे पूर्वजों से मिली है ये चीज़. लाइक डांस फॉर्म, लाइक बीहू डांस फॉर्म, है ना, ये कहाँ से चलता आ रहा है? हमारी ओल्ड जनरेशन से चलता आ रहा है. ठीक है, जो भी हम कस्टम्स और रिलीजन्स फॉलो करते हैं दैट वी ऑल्सो गेट फ्रॉम आर इंसेस्टर्स. सो ऑल दीज थिंग्स जो भी हमें हमारे पूर्वजों से मिला है दैट इज़ कॉल्ड और दैट कम्स अंडर द हेरिटेज. ओके, नाउ in this chapter we will read about architectural sites. ठीक है, those architectural sites that we get from our ancestors, that is a part of our heritage. जो हमारे एक heritage का part है, means that are very old, that we get from our old generation, or you can say that we get from our ancestors. Okay, about those architectural sites we will read in this chapter. So every civilization has had its own special style of making buildings for residential, official, religious and ornamental purposes. Several forms of architecture can be seen in the world around us. कहते हैं हर एक सभ्यता, civilization means सभ्यता, every civilization, हर एक सभ्यता has its own style of making buildings. हर किसी का एक क्या था? एक own style था बेटा. in the एंशियंट टाइम्स. ठीक है, पुराने टाइम में हर एक सभ्यता का अपना एक ओन यूनिक स्टाइल था टू मेक द बिल्डिंग्स. वेदर दे आर मेकिंग बिल्डिंग्स फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, मीन्स रहने के लिए बनाते थे, या फिर ऑफिस पर्पसेस के लिए, या फिर रिलीजियस से रिलेटिंग, लाइक टेम्पल्स, चर्चेज, मीन्स दे हैड देयर ओन स्टाइल्स. उनका क्या था? एक अपना एक यूनिक स्टाइल था. सो वी कैन today we can see several forms of architectures, means we can see many buildings in the world around us. ठीक है, there are different kinds of building. Taj Mahal is different, है ना, Jantar Mantar is different, Meenakshi temple is different, everything is different in its they all have their unique style. So in this chapter we will read about these architectural sites one by one. Next is India has a rich heritage of architecture. Its monuments include beautiful gem-studded palaces, big forts, temples, mosques and churches. कहते जो इंडिया है बेटा, it has a rich heritage of architecture, means इंडिया में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं that we get from our old generation, or you can say that we get from our ancestors, or that we get from our ancient times, that we have from our ancient times. Still we have so many buildings. So all these buildings, all these architectural sites are a part of our heritage, क्योंकि अभी हमने नहीं बनाई हैं. ठीक है, इन मॉडर्न ईरा की बिल्डिंग्स नहीं हैं अभी. ठीक है, these all are we get from the our ancestors, so they all are a part of our heritage. Okay.
So we are going to read about them one by one. Let us learn about some of the famous architectural sites and monuments of India. So first one is Meenakshi temple beta. Meenakshi temple, we are going to read about these architectural sites of India one by one. Okay, so first one is Meenakshi temple. First of all, we will read that where is it, where this temple is located. ओके, मीनाक्षी टेम्पल इज़ इन मदुराई तमिलनाडु. कहाँ पे सिचुएटेड है बेटा ये? मदुराई तमिलनाडु में. एंड व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस टेम्पल? दिस टेम्पल हैज़ 14 टावर्स कॉल्ड गोपुरम्स. इस टेम्पल के क्या हैं बेटा? 14 टावर्स हैं. दिस टेम्पल हैज़ 14 टावर्स कॉल्ड गोपुरम्स. विच टावर्स? दिस वन यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन ना. these are the you in the picture you can see only one tower है ना, but the same like this the Meenakshi temple has 14 towers. ठीक है, like this is a one tower you can see in the picture. So Meenakshi temple has these kinds of 14 towers and these towers are called gopurams. इनको हम क्या बोलते हैं? gopurams. Okay, now next is a 1000 pillar hall with 985 pillars. So this is a big hall. I'm going to mark a line. This is a big hall. This is a big hall where 985 pillars are there. Okay, now next is images of gods and goddesses are carved on these pillars. कहते जो ये pillars हैं बेटा, ये वाले जो सारे pillars हैं, these are the pillars. ठीक है, जो ये सारे pillars हैं, इन pillars के ऊपर क्या है, किसकी images बनी हुई हैं? गॉड्स एंड गॉडेसेस की, मतलब देवी और देवताओं की पिक्चर्स बनी हुई हैं इन दी ऑन दीज पिलर्स. ठीक है, इन पिलर्स के ऊपर. दीज इमेजेस टेल लेजेंडरी टेल्स. कहते जो ये इमेजेस हैं इन पिलर्स के ऊपर देवी और देवताओं की, गॉड्स एंड गॉडेसेस की, दे टेल अस सम शॉर्ट स्टोरीज. ठीक है, वो हमें कुछ ना कुछ क्या बताती हैं, कुछ ना कुछ दे गिव अस सम शॉर्ट स्टोरीज. दोज इमेजेस दैट आर कार्व्ड ऑन दिस पिलर्स. जस्ट आउटसाइड दिस पिलर हॉल टूवर्ड्स द वेस्ट आर द म्यूजिकल पिलर्स. कहते हैं इस पिलर हॉल के बाहर वेस्ट की साइड, ठीक है, टूवर्ड्स द वेस्ट देयर आर सम म्यूजिकल पिलर्स. सो बेटा what is the speciality of these musical pillars? that whenever you will struck those musical pillars, जब भी आप उन musical pillars को struck करो, whenever you will struck on those musical pillars, every time these musical pillars will produce a different musical sound. ठीक है, जितने बार भी आप उन पिलर्स को स्ट्रक करोगे उतने ही टाइम दे विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट म्यूजिकल साउंड. सो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ these musical pillars. Okay, now yes beta, Jama Masjid is in Delhi and is one of the most famous mosque in India. It is very famous in India and this mosque was built by Mughal king Shah Jahan in the 17th century. Who built this mosque beta? Who built this mosque? Mughal king Shah Jahan. And in which century? In the 17th century. Now what are the main features of this monument? What are the main feature of this monument beta? It is the largest mosque in India. ये बहुत बड़ी mosque है इंडिया में and it has a huge courtyard. इसका जो courtyard है बेटा, it is very big where thousands of people can pray at the same time. एक single time पे बहुत हज़ारों लोग यहाँ पे gather होके वो अपनी pray कर सकते हैं. Okay, and the roof of the mosque has 8 domes. जो इसकी roof है बेटा उसके ऊपर कितने domes हैं? How many domes are there? 8 domes are there. You can see here 1 dome, 2, 3. In the picture you can see only 3 domes and rest domes are also there. So how many total domes are there? 8 domes are there. How many domes are there? 8 domes. And there are 2 minarets with staircases inside them. Minarets means long towers. These are the long towers na. These are called the minarets and with staircases inside them. Staircases means stairs are there inside them. ठीक है, इनके अंदर क्या है बेटा? स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं. ओके, नाउ दिस मॉन्यूमेंट इज़ प्राइमरीली मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन विद वाइट मार्बल. ये किस चीज़ का बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल एंड इट इज़ सेड दैट अबाउट 5000 वर्कर्स बिल्ट दिस मॉस्क in 7 years. ठीक है, हाउ मैनी वर्कर्स बिल्ड दिस मॉस्क? 5000.
5000 वर्कर्स ने काम किया था इसको बनाने के लिए। एंड इन 7 years these workers built this mosque। 7 साल लगे थे इसको बनाने में। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट जामा मस्जिद। वी आर गेटिंग न्यू नॉलेज ना बाय रीडिंग दिस आर्किटेक्चरल साइट्स। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्लीज़ keep doing, or you can say start reading at home also, only then you can understand this chapter beta. Now next is Hawa Mahal. Now we will talk about the Hawa Mahal, that where it is situated. First of all beta, it is situated in the city of Jaipur। ठीक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? जयपुर सिटी में। एंड इट इज़ अ 5 storied वॉल बिल्ट बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह। इसकी 5 storied वॉल है ये, ठीक है, 5 स्टोरीज बनी हुई हैं इसकी। एंड हु बिल्ट दिस? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। इन विच ईयर बेटा? 1799 ईयर में, ठीक है, इट वॉज बिल्ट बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह। Now next is, what are the main features of this monument? Hawa Mahal means palace of winds। Palace of winds means हवाओं का महल, ठीक है, because there are so many windows are there in the Hawa Mahal। Now next is, during any ceremonial procession women of royal family would sit in the small windows or the jhorokhas of the palace। Ceremonial procession means whenever there is any celebration or any festival, the women of the royal families, जो royal families की women's होती थी, बड़े बड़े घरानों की औरतें होती थी, like महारानियाँ वगैरह, ठीक है, they would sit in the small windows। These are the small windows ना in the Hawa Mahal। These are the small windows like this। These all are the small windows। Okay, so these all are the small windows, so where the women of royal families sit, and while sitting here they would watch the procession from their stone carved jhorokhas। These windows are also called jhorokhas of the palace। ठीक है, वो यहाँ पे बैठ के क्या देखती थी? whenever there is any celebration, then they would sit here and watch that procession। Hawa Mahal was built with pink sandstone in honeycomb design in the city of Jaipur। ठीक है, जयपुर सिटी में ये कौन से डिज़ाइन में बना हुआ है? हनीकॉम्ब डिज़ाइन में। हनीकॉम्ब डिज़ाइन मीन्स जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, लाइक दैट, इट लुक्स लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट इज़ द लेक पैलेस। द लेक पैलेस इज़ इन उदयपुर राजस्थान। कहाँ पे है बेटा? ये उदयपुर राजस्थान में। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 250 ईयर्स ओल्ड। कितना पुराना है ये? 250 ईयर, ठीक है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज़ सिचुएटेड इन उदयपुर राजस्थान। एंड इट वॉज बिल्ट बाय महाराणा जगत सिंह। किसने बनाया था इसको? महाराणा जगत सिंह। इट इज़ बिल्ट इन द मिडल ऑफ लेक पिचोला। मेन फीचर्स ऑफ दिस मॉन्यूमेंट, ये कहाँ पे बना हुआ है बेटा? एक लेक है, द नेम ऑफ द लेक इज़ पिचोला लेक। ओके, उसके मिडल में है ये जो ये पैलेस बना हुआ था, लेक पैलेस। इट इज़ बिल्ट इन द मिडल ऑफ लेक पिचोला। एंड व्हाट आर द मेन फीचर्स नाउ? It is made from white sandstone and has many courtyards and fountains। There are so many fountains inside this palace and it is made up of white sandstone। ये किस चीज़ का बना हुआ है? white sandstone का। The royal family used it as a summer resort। कहते जो पुराने ज़माने में रॉयल फैमिलीज़ होती थी, बड़े बड़े राजे महाराजे होते थे, वो इसको क्या यूज़ करते थे? एज अ समर रिजॉर्ट, ठीक है। दे स्टे हेयर फॉर सम टाइम ड्यूरिंग समर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक पैलेस। नाउ लुक एट एटसेट्रा। द उदयपुर लेक पैलेस हैज़ बीन टर्न्ड इनटू अ 5-star पैलेस नाउ कॉल्ड ताज लेक पैलेस एंड इट अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट। कहते हैं अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? 5-star पैलेस में, ठीक है। नाउ अ डेज, इन दिनों में अभी ये क्या है? एक 5-star पैलेस है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ताज लेक पैलेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ताज लेक पैलेस। एंड सो मैनी जो टूरिस्ट बेटा वहाँ पे घूमने जाते हैं, ठीक है, राजस्थान में, दे डेफिनेटली स्टे हेयर इन दिस पैलेस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन आर्किटेक्चरल साइट, दैट इज़ निज़ामुद्दीन टॉम्ब। That is Nizamuddin tomb. And Nizamuddin tomb, it is also known as Nizamuddin's Dargah। It is also known as Nizamuddin's Dargah and it is situated in Delhi। ये भी कहाँ पे situated है बेटा? दिल्ली में situated है। And it was built by Nizamuddin Auliya, a famous Sufi संत of Delhi। ठीक है, दिल्ली का एक फेमस संत था, ठीक है, उसके द्वारा ये निज़ामुद्दीन टॉम्ब जो है
उसके द्वारा बनाया गया है। एंड द नेम ऑफ द फेमस सूफी सेंट, द नेम ऑफ द फेमस सूफी सेंट इज़ निज़ामुद्दीन औलिया। Now what are the main features of this monument? The tomb is surrounded by a courtyard where people gather for prayers। ठीक है, एक courtyard है, इसके बाहर एक बड़ा एरिया है जहाँ पे लोग गैदर होते हैं प्रेयर्स के लिए, इकट्ठे होते हैं प्रेयर्स के लिए। ठीक है, मोस्टली मुस्लिम्स लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ निज़ामुद्दीन टॉम हैज़ केप्ट अलाइव द ट्रेडिशन ऑफ कव्वाली म्यूज़िक। ठीक है, कव्वाली होती है ना बेटा, एक कव्वाली, तो पहले ज़माने में यहाँ पे कव्वाली म्यूज़िक होता था। तो स्टिल अभी भी नाउ अ डेज़ दिस ट्रेडिशन हैज़ बीन केप्ट अलाइव, अभी भी ये ट्रेडिशन वहाँ पे चलता है। स्टिल कव्वाली म्यूज़िक इज़ देयर इन द निज़ामुद्दीन टॉम्ब। तो निज़ामुद्दीन टॉम्ब ने उस पुराने ट्रेडिशन को अभी भी क्या रखा हुआ है, ज़िंदा रखा हुआ है। ठीक है, मीन्स केप्ट अलाइव, कि स्टिल द कव्वाली म्यूज़िक इज़ गोइंग ऑन इन दिस निज़ामुद्दीन टॉम्ब। Now next is many Qawwali singers and musicians come to the दरगाह to present devotional songs। कहते बहुत सारे कव्वाली सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस आते हैं इस दरगाह में टू प्रेजेंट और टू सिंग द डिवोशनल सॉन्ग्स। डिवोशनल सॉन्ग्स मीन्स जो रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं। ठीक है, जो धर्म से धार्मिक सॉन्ग्स होते हैं, दैट आर नोन एज डिवोशनल सॉन्ग्स। नाउ नेक्स्ट इज़ न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। कहते कुछ न्यू बिल्डिंग्स भी हैं, दीज ऑल वर द ओल्ड बिल्डिंग्स। ठीक है, दैट वर अ पार्ट ऑफ आर हेरिटेज, जो हमारे एक हेरिटेज का पार्ट था, दैट वी गेट फ्रॉम आर ओल्ड इंसेस्टर्स, जो हमें कहाँ से मिला, फ्रॉम आर इंसेस्टर्स। नाउ देयर आर सम न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑल्सो। ठीक है, दैट बिगेन टू डिवेल्प। वो कब डिवेल्प हुए बेटा, व्हेन आर इंडिया कम, और यू कैन से व्हेन आर इंडिया केम अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश, जब हमारा इंडिया ब्रिटिश लोगों के अंडर आया था। ठीक है, देन सम न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑल्सो बिगिन टू डिवेल्प। तो कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं जो बनी थी व्हेन आर इंडिया वाज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश? कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं? लाइक राष्ट्रपति भवन इन दिल्ली, इंडिया गेट इन दिल्ली, पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली एंड विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता। सो देयर आर 4 न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और न्यू आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स दैट बिगेन टू डिवेल्प व्हेन इंडिया केम अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश, जब हमारा इंडिया ब्रिटिश लोगों के अंडर था। ठीक है, देन दीज 4 न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल्स बिगेन टू डिवेल्प। Okay, so this is all about the architectural sites. Hope you all understand these architectural sites beta. Now next is festivals. Next topic is festivals. Okay, so festivals are also a part of our heritage. Festivals are also a पार्ट ऑफ आर हेरिटेज, ये भी एक हमारे हेरिटेज का पार्ट ही है। वी ऑल्सो गेट दीज फेस्टिवल्स फ्रॉम आर इंसेस्टर्स, ये भी हमें कहाँ से मिले हैं, फ्रॉम आर इंसेस्टर्स। लाइक दिवाली, दुशहरा, ये भी तो लोग पुराने ज़माने में सेलिब्रेट करते थे ना, बट नाउ अ डेज द सेम ट्रेडिशन इज़ देयर, वी आर फॉलोइंग द सेम ट्रेडिशन, सेम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड by our new generation, or you can say by us, है ना। so these are also a part of our heritage. So now next is festivals and celebrations give us opportunities. Why we celebrate festivals, why we celebrate, why we do celebrations? Because these festivals give us opportunities, ये हमें मौका देते हैं बेटा to interact with our friends, to interact with our friends and relatives, because during festivals हम अपने फ्रेंड्स को मिलते हैं, हम अपने relatives को मिलते हैं, मिठाइयाँ स्वीट्स शेयर करते हैं, है ना। तो हमें एक मौका देते हैं to interact with our friends and relatives. So festivals in India have been grouped into 3 categories. कहते there are 3 categories of festivals, 3 categories है festivals की। national festivals, religious festivals, social festivals. Okay, so there are 3 types of festivals, or you can say 3 categories of festivals, and about these festivals we will read one by one. So first of all, national festivals beta. First of all, national festivals. National festival means these are those festivals that are celebrated by all the people of the country, जो कंट्री के सारे पीपल, एवरी पीपल सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप इसको सेलिब्रेट कर रहा है, नो,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं या सिर्फ हिंदू लोग करते हैं या सिर्फ सिख लोग करते हैं. नो, these are celebrated by all the people of the country. Those festivals that are celebrated by all the people of the country, those are known as national festivals. उनको हम क्या बोलते हैं? national festivals. Okay, so let's read these national festivals. National festivals are celebrated in every part of the country. These festivals are different from other festivals as they are not celebrated by एनी वन पर्टिकुलर ग्रुप एलोन. कहते जो ये फेस्टिवल्स होते हैं बेटा नेशनल फेस्टिवल्स, ये दूसरे फेस्टिवल्स से क्या है? डिफरेंट है. वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर फेस्टिवल्स? बिकॉज इनको एक पर्टिकुलर ग्रुप ही नहीं सेलिब्रेट करता. दीज आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री. ओके, लाइक विच फेस्टिवल्स आर, what examples we can give about national festivals like Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti, Children's Day. So these all are the national festivals. ठीक है, हम सारे सेलिब्रेट करते हैं ना इंडिपेंडेंस डे. ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदू लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं या सिर्फ क्रिश्चियन लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं या सिर्फ सिख लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. नो ना, these are those festivals that are celebrated by all the people of the country. ठीक है. So after about 200 years of British rule, India got freedom. कहते ब्रिटिश रूल कितना टाइम रहा हमारे इंडिया के ऊपर? 200 ईयर्स. 200 ईयर्स के बाद हमारे इंडिया को फ्रीडम मिली थी. कब मिली थी? 15 अगस्त 1947. तो ईच ईयर, हर साल हम इस दिन को क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे, है ना. सो this independence day is celebrated by each and every people of the country. So this is one of the national festival. So this is one of our national festival. Okay, and now next is Republic Day. Next कौन सा? Republic Day. This is also one of the national festival. Republic Day is also celebrated by each and every people of our country. ठीक है, हर कोई मनाता है इसको. सिख लोग भी, हिंदू लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी, मुस्लिम जी, everyone celebrate this festival on 26th January 1950. Okay, as a Republic Day. So this is also one of the national festival. Now next is Gandhi Jayanti. कहते मोहनदास करमचंद गांधी, also known as Mahatma Gandhi, was born on 2nd October in 1869 at Porbandar, Gujarat. मोहनदास, महात्मा गांधी. व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी बेटा? मोहनदास करमचंद गांधी. उनका बर्थ कब हुआ था? कब बॉर्न हुए थे वो? 2 अक्टूबर को. ठीक है, 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं ना, हमें छुट्टी होती है 2 अक्टूबर की. ठीक है, उस दिन क्या होता है? गांधी जयंती. ठीक है, तो हम उनकी क्या सेलिब्रेट करते हैं उस दिन? बर्थ एनिवर्सरी. वी सेलिब्रेट his birth anniversary as गांधी जयंती. तो दिस गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड बाय ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री ना. सब लोग मिलके मनाते हैं इसको. ऐसा तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप मना रहे हैं, सिर्फ हिंदू मना रहे हैं या सिर्फ सिख लोग मना रहे हैं. नो, this is celebrated by all the people of the country. Because why we celebrate his birth anniversary as Gandhi Jayanti? Because Mahatma Gandhi led the struggle for freedom in India. उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था इंडिया को फ्रीडम दिलवाने के लिए. ठीक है, सो दैट्स वाई वी सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी. उनकी जिस दिन उनका बर्थ हुआ था उस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज गांधी जयंती. ओके, एंड सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नेशनल फेस्टिवल. Now the next is Children's Day. This is also one of the national festival. ये भी हम कितने we all are so excited ना on this day. हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं सारे के सारे ऑन चिल्ड्रंस डे. कि चिल्ड्रंस डे आने वाला है एंड वी गेट सो मैनी गिफ्ट्स ऑन दिस डे. हमें बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स मिलते हैं इस दिन, है ना. वाई वी सेलिब्रेट दिस डे बेटा? हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं इस दिन में चिल्ड्रंस डे? वाई? that we will read now. The birth anniversary of our Prime Minister Jawaharlal Nehru is celebrated on 14th November. कहते हैं हम 14th नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं ना. उस दिन हम बेसिकली क्या चीज़ सेलिब्रेट करते हैं? द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. इस दिन इनका बर्थ हुआ था बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू का. ठीक है, सो हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं ऑन 14th नवंबर. पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न ऑन 14th नवंबर. ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर इन द स्ट्रगल फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस. कहते हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे, इनका मेन रोल था. ठीक है, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है हमारे इंडिया को
आज़ादी दिलवाने में, टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंस. So Nehru wanted children to be looked after carefully because children are the future of our country. बेटा जो जवाहरलाल नेहरू थे वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, ठीक है, बिकॉज उनकी थिंकिंग क्या थी, दैट चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री. जो बच्चे हैं वो हमारे कंट्री का क्या है, फ्यूचर है, ठीक है. सो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन फॉन्डली कॉल हिम चाचा नेहरू. क्योंकि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे इसलिए बच्चे उनको क्या बोलते थे, चाचा नेहरू, ठीक है. सो दैट्स वाई वी सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी. उस दिन हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं एज अ चिल्ड्रंस डे. Okay, so this is also one of the national festival that is celebrated by each and every people of our country. Okay everyone, now next is the religious festival. Next is the religious festival that we will read in next video. Hope you all understand this video, this topic. Please read this topic at home. Okay everyone, till the time, bye bye everyone, and in next video we will meet with the religious festival. Bye everyone.